السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ خوشگوار بات چیت کے دوران دو طرفہ تعاون بڑھانے اور علاقائی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سیاسی، سماجی اور اقتصادی شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاع کے تصویراتی معاہدے کو سراہا ہے۔ صدر نے خطے میں مسلمانوں کے لیے بہترین خدمات کی فراہمی پر چین میں زنجیانگ اسلامک انسٹی ٹیوٹ کی تعریف کی ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اہم معاہدوں کی منظوری دی ہے، جس میں ریکوٹک منصوبے کے آغاز کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے اقتصادی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی امور کے وزیر نے ملک کے اقتصادی منظرنامے میں تبدیلی لانے کے لیے ریگولیٹری اصلاحات متعارف کرانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خزدار میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج میو ہسپتال لاہور میں پنجاب کے جدید ترین کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سابق چیئرمین پروفیسر عبدالغنی بٹ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ T20 ایشیا کپ میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان میچ ابوظہبی میں جاری ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی خوشگوار بات چیت میں علاقائی چیلنجز کا جائزہ لینے اور دو طرفہ تعاون بڑھانے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ محمد بن سلمان کی مسلسل حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان سعودی سرمایہ کاری، تجارت اور کاروباری تعلقات بڑھانے میں ان کی گہری دلچسپی کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی دل سے دعا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی فروغ پاتی رہے اور ترقی کی نئی منازل طے کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سعودی ولی عہد کی جانب سے مسلم دنیا کو فراہم کیے جانے والے ویژن اور قیادت کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کرتے ہیں۔ سیاسی، سماجی اور کاروباری حلقوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تصویراتی باہمی دفاعی معاہدے کو سراہتے ہوئے اسے علاقائی امن، سلامتی اور پائیدار ترقی کا ضامن قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں سینیٹ کے قائم مقام چیئرمین سیدال خان نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا اور خطے میں ترقی اور استحکام کی نئی راہیں کھولے گا۔ اپنے بیان میں قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے دو طرفہ تعلقات اور تصویراتی اشتراک عمل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک تعمیری قدم اٹھانے پر دونوں ممالک کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو وزیر اعظم شہباز شریف اور بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بصیرت افروز قیادت پر فخر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی شاندار مہمان نوازی کرنے پر سعودی عرب کو سراہتے ہوئے نئے دفاعی معاہدے کو ایک فیصلہ کن قدم قرار دیا جو دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ایک نجی نیوز چینل سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفاعی تعاون پاکستان کے علاقائی استحکام کے لیے دور رس اثرات کی حامل تصویراتی صلاحیت پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ ادھر چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر محمود اشرفی نے باہمی دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو خراج تحسین پیش کیا۔ آج لاہور میں مسیحی رہنماؤں کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کے حالیہ دورہ سعودی عرب کو انتہائی کامیاب قرار دیا۔ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آج یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے ہمارے لیے، تو یہ دفاعی معاہدہ اس لیے بھی
بہت تقدس رکھتا ہے کہ اس میں عرض حرمین شریفین کا دفاع شامل ہے، لیکن جو ہماری غیر مسلم برادری ہے، ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ بھی اس معاہدے سے جتنا ہم خوش ہیں اتنے ہی خوش ہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان کا اور مملکت سعودی عرب کا معاہدہ ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماڈریٹر بشپ آزاد مارشل نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ مسیحی برادری کے لیے بھی ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی نے بھی ایک بیان میں تصویراتی باہمی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے آج اورمچی میں ژین جیانگ اسلامی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا۔ ژین جیانگ اسلامی انسٹیٹیوٹ کے صدر نے ان کا استقبال کیا۔ آصف علی زرداری کو بتایا گیا کہ یہ ادارہ ژینجیانگ بھر میں خدمت کے لیے مذہبی اسکالرز، ائمہ اور خطیبوں کو منظم مذہبی تعلیم و تربیت فراہم کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ صدر کو بتایا گیا کہ یہ ادارہ قرآن، حدیث، اسلامی قوانین، عربی، تھیولوجی اور تاریخی، کمپیوٹر کی تعلیم، اخلاقیات اور سائنسز سمیت جنرل مضامین کے کورسز کراتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ادارے کی جانب سے خطے میں بسنے والے مسلمانوں کو دی جانے والی خدمات کو سراہا اور پاکستان اور چین کے درمیان وسیع افہام و تفہیم کے لیے علمی اور ثقافتی تبادلوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اورمچی کے اربن آپریشنز اینڈ مینجمنٹ سینٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں ان کا استقبال میئر اورمچی اور سنکیانگ کے نائب گورنر نے کیا۔ صدر اور ان کے وفد کو سینٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی، جو بلدیہ کے 30 سے زائد محکموں سے آن لائن منسلک ہے اور شہریوں کو 200 سے زائد خدمات فراہم کرتا ہے۔ آصف علی زرداری نے مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں گہری دلچسپی لی اور اسے بنانے اور چلانے والوں کی سوچ کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ شہری نظم و نسق کی سوچ پاکستان کے لیے قیمتی اسباق فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان میں شہری منصوبہ ساز اس ماڈل سے متاثر ہو کر مقامی ضروریات کے مطابق نظام تیار کریں گے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان اور مالدیپ کے درمیان تجارت، سیاحت، تعلیم اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وہ مالدیپ کی مجلس عامہ کے اسپیکر عبدالرحیم عبداللہ کی سربراہی میں ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے ٹیکسٹائل، چاول، سیمنٹ، گوشت، پھلوں اور سبزیوں کی مالدیپ کی طلب پوری کرنے کی پاکستان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور دفاعی تعاون مضبوط کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ رواں سال اپریل سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اعادہ کیا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق پرامن حل ناگزیر ہے۔ عبدالرحیم عبداللہ نے کہا کہ مالدیپ پاکستان کو خطے میں اپنا قریبی شراکت دار سمجھتا ہے۔ قائم مقام صدر اور بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کے بانی چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے روس کی فیڈریشن کونسل کی اسپیکر ویلنٹینا میٹوینکو سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران قائم مقام صدر نے انہیں اس سال نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ ویلنٹینا میٹوینکو نے دعوت دینے پر قائم مقام صدر کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ کانفرنس میں روس کی نمائندگی ایک اعلیٰ سطح کا وفد کرے گا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اہم معاہدوں کی منظوری دے دی ہے، جس سے ریکوڈک منصوبے کے آغاز کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ای سی سی نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ایک اجلاس میں ریکوڈک مائننگ کمپنی کے ساتھ ریل کی ترقی کے معاہدے اور فنڈز کی فراہمی کے معاہدے کی منظوری دی۔ معاہدوں کے تحت بلوچستان کی کانوں سے برآمدی مواد کی بڑی مقدار کے نقل و حمل کے لیے 1350 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بچھانے کے لیے 39 کروڑ ڈالر کی مالی مدد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ فورم نے ریکوڈک منصوبے کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق حتمی معاہدے اور مالی وعدوں کی منظوری بھی دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ ای سی سی کی منظوری اس تاریخی منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتی ہے، جو بلوچستان کے معاشی منظرنامے کو تبدیل کرنے اور پاکستانی عوام کے لیے دورس فوائد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے معاشی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور یورپی یونین کے نئے مقرر کیے گئے سفیر ریمن داس کیروبلس کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا۔
मुलाकात के दौरान फ्रीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया, जिनमें पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान माशी ताउन में इजाफे और दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर खुसूसी तौर पर तवज्जो मरकूज की गई। पाकिस्तान और शाम ने अपने अवाम के बाहमी मफाद के लिए दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने और मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया है। इस अज़्म का इजहार आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और शाम के सफ़ीर रमीज़ और राय के दरमियान मुलाकात में किया गया। दैरीन बरादराना ताल्लुकात को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। इक्तिसादी उमूर आहद चीमा ने रेगुलेटरी इस्लाहात का पैकेज मुतारिफ कराने के मंसूबों का ऐलान किया है, जिसका मकसद मुल्क के सरमायाकारी मंजिलनामे को तब्दील करना है। वो आज इस्लामाबाद में सरमायाकारी बोर्ड के तस्वीराती लाहे अमल से मुतालिक एक इजलास की सदारत कर रहे थे। विफाकी वज़ीर ने रेगुलेटरी इस्लाहात के लाहे अमल पर जारी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने पोलैंड के साथ ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। आज इस्लामाबाद में पोलैंड के सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ से तिजारत, टेक्नोलॉजी के तबादले और पायदार ज़रई तरक्की के शोबों में नए रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारत, सरहदी ताउन और इंसानी बुनियादों पर इक़दामात मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला आज इस्लामाबाद में इंसदाद गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर इमरान अहमद शाह और ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के दरमियान मुलाकात में किया गया। फ्रीकैन ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत से मुतालिक चैलेंजेस, खुसूसन सरहदी रुकावटों और ढांचा जाती खलाफ पुर करने पर तबादला ख्याल किया। सफ़ीर ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तानी चावल की दरामद में तकरीबन 10% इजाफा किया है। विफाकी वज़ीर ने इस इक़दाम को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर ने बलूचिस्तान और ईरान के सरहदी इलाकों में तरक्की की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुकामी आबादी के लिए सहूलियात और मौक़े में तरजीही बुनियादों पर इजाफा किया जाना चाहिए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने शराकतदारों और आवाम को पेट्रोलियम के शोबे की पेशरफ्त के हवाले से आगाह रखने के लिए तेज़ तर तस्वीराती रवाबत की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड ऑफिस के दौरे के दौरान शोबे को डिजिटाइज करने पर भी जोर दिया, ताकि मौसर निगरानी के जरिए इस शोबे के निकाइस की निशानदेही की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले महीने नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम का दोबारा आगाज़ करेंगे। ये बात वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने आज इस्लामाबाद में मीट द प्रेस प्रोग्राम के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विफाकी सतह की इस स्कीम के तहत बासलाहियत लड़के लड़कियों को 1 लाख लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दीगर 1.5 लाख लैपटॉप्स नौजवानों को लैपटॉप फॉर ऑल स्कीम के तहत फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत लैपटॉप के हुसूल के लिए बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे और दरख्वास्त गुजार को ये रकम 4 साल में अदा करना होगी। दरियाए सतलज से मुल्हिका सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की न्यूज़ रिलीज़ के मुताबिक पाक फौज और सिविल इंतज़ामिया सैलाबज़दगान की बहाली के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। ज़िला मुजफ्फरगढ़ के सैलाबज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के नुमाइंदे माजिद अली महमूद से। मरियम औरंगजेब की क़यादत में सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, काज़म पीरज़ादा, सुहेब भर्त और राना सिकंदर हयात जिला मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासर इलाकों में अजमतपुर, बीट मुल्लावाली, बस्ती कंडरा, कोटला आगरा, बीट नोरवाली, लालवाला, टिब्बा बराड़ा और बेट चन्ना में सैलाबज़दा अफराद को पीने के साफ पानी, अमदादी राशन और जानवरों के लिए वंडा की फराहमी के लिए जारी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आज वफाकी वज़ीर मौसलात अब्दुल अलीम खान ने भी जलालपुर पीरवाला का दौरा किया और मोटरवे को पहुंचने वाले नुकसान, बहाली के इक़दामात और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुजदार में कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना उल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया जो इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में पूरी तरह मुलविस थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुजदार बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की पेशा सलाहियतों की तारीफ की है। आज एक बयान में उन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज म्यू हस्पताल लाहौर में पंजाब के जदीद कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अत्तर रसूल से। आज लाहौर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की हामिल पहले कोआबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि कैंसर के मरीजों को जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। बहुत खुशी की आज ये खबर है पाकिस्तान के अवाम के लिए, पंजाब के अवाम के लिए। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम खिदमत कर सकें, स्पेशली जो दुखी इंसानियत है, जो बीमार हैं, उनकी शफायाबी का हम बाइस बन सकें। मरीम नवाज ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के कैंसर के इलाज के लिए जदीद तरीन मशीनरी दरामद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सेंटर में मुस्तहिक कैंसर मरीजों के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। 16 लाख या 17 लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। पंजाब हुकूमत अल्लाह ताला के फजल करम से 100% उनका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उसके लिए हम पूरा अपना प्रोसीजर हमने बना लिया है। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा, पेचीदा और तकलीफदेह होता है और इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से कैंसर मरीजों में उम्मीद की नई किरण पैदा हुई है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने गंदम की तलब पूरी करने और तहफ़्फ़ुज़ खुराक यकीनी बनाने के लिए मज़ीद गंदम काश्त करने की गरज से काश्तकारों की मदद के हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने आज कराची में ज़राअत और खुराक के महकमे के इजलास की सदारत करते हुए गंदम के काश्तकारों को मुराद फराहम करने के हवाले से जामी मनसूबा तलब किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा है कि हर फर्द की इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए अफ़गान बाशिंदों की शफाफ, मुनज़्ज़म और बावकार अंदाज से उनकी वतन वापसी के अमल को जारी रखा जाएगा। उन्होंने आज कोयटा में एक इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की कि ख़वातीन और बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और उनकी तौहीन और किसी भी तरह का नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान हुकाम पर जोर दिया है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बदस्तूर सबसे बड़ा ख़तरा है। उन्होंने कहा कि दाइश, अल-कायदा, TTP, ETIM, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत दहशतगर्द तंजीमें अफ़गान पनाहगाहों से मज़मूम कार्रवाइयाँ सर अंजाम देती हैं, जहाँ इस तरह के 60 से ज़ायद दहशतगर्द कैंप सरहद पार से दरअंदाजी और हमलों के लिए मरकज़ के तौर पर सरगर्म हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी तंजीमों ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा, दानिश्वर और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। हुर्रियत तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास और दीगर सीनियर हुर्रियत क़यादत ने प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की वफात को अजीम सानहा और नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में नई दिल्ली की तैनात करदा इंतजामिया ने अवाम के बड़ी तादाद जमा होने के डर से मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के सोगवार खानदान को उनकी तदफीन रात के अंधेरे में करने पर मजबूर किया। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं मीरवाइज उमर फारूक, मसरूर अब्बास और दीगर को नमाज जनाजा की अदायगी से रोक दिया था। दोनों रहनुमाओं को घरों में नजरबंद किया गया ताकि वो नमाज जनाजा में शिरकत न कर सकें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को भी सोगवार खानदान से
ताज़ियत करने से रोकने के लिए घर में नज़रबंद कर दिया गया है। आज गजा पर इसराइली फौज ने अपने मुसलसल हमलों में 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक काबिज फौज ने 65,000 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद किया है। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शबानी वाशिंगटन पहुंच गए हैं, जहां वो अपने मुल्क पर आयद अमरीकी पाबंदियां हटाने के हवाले से बातचीत करेंगे। ये 25 साल से ज़ायद अरसे में शाम की किसी वज़ीर ख़ारजा का पहला सरकारी दौरा है। कतर के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अल खलीफी ने हेग में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के सदर जज तमोको अकेने से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद गुज़िश्ता हफ्ते उनकी इलाकाई हदूद पर इसराइल के वहशियाना हमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करना था। और रेडियो खबरनामा जारी है। वक्त है खेलों की खबरों का। T20 एशिया कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच अबू ज़हबी में जारी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान किया है कि ख़वातीन ब्लाइंड क्रिकेट T20 कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मैचेस नेपाल से श्रीलंका के शहर कोलंबो मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान ने कहा कि टूर्नामेंट 11 से 25 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो ये मैचेस कोलंबो में होंगे। उधर नेशनल विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम का ऐलान आइंदा माह होगा, जो आलमी कप में शिरकत करेगी। पाकिस्तान वनडे और T20 ब्लाइंड क्रिकेट दर्जाबंदी में सफ़े अव्वल की टीम है। पाकिस्तान आलमी सतह पर बसारत से महरूम खिलाड़ियों को कोचिंग की सहूलियात फराहम करता है। खेलों और उमूरे नौजवानान के बारे में पंजाब के वजीर मलिक फैसल अयूब खोखर ने लाहौर के निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पैदल टेनिस कोर्ट तामीर करने का ऐलान किया है। पंजाब में इस खेल को बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ कराते हुए मुल्तान और रावलपिंडी में भी कोर्ट्स तामीर किए जाएंगे। सूबाई वजीर ने कहा कि लाहौर कोर्ट आलमी मयार के मुताबिक तामीर किया जाएगा और पंजाब पहले आलमी पैदल टूर्नामेंट का मेज़बान होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा ख़वातीन की खेलता पंजाब पिंक गेम्स में पैदल टेनिस को भी शामिल किया जाएगा। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। आज इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान डंकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट फोरम शुरू हुआ। फोरम की मुश्तरका मेज़बानी पाकिस्तान में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सेंगयांग इंडस्ट्रियल बीजिंग ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पाकिस्तान में चीन के सफारत खाने और वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक के ज़ेर निगरानी की। फोरम में दोनों मुल्कों से सैकड़ों सनती माहिरीन, दानिशवरों, तिजारती नुमाइंदा और हुकूमती अहदेदारों ने शिरकत की। फोरम के इनेकाद का मकसद डंकी की सनत की तरक्की के जदीद तरीके तलाश करना, सनती शोबे में हम आहंगी और म्यारी सनती क़वाइद व ज़वाबित वसा करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 1775 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,57,953 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 1959 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1356 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज सिनेटो पीके कंपनी के सबसे ज़्यादा 213 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 485 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 332 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 124 में कमी, जबकि 29 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। सुपर नेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 89 रुपये 54 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 160 रुपये 72 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 40 पैसे और कीमत फरोख्त 281 रुपये 90 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 383 रुपये 29 पैसे और 383 रुपये 98 पैसे। यूरो 332 रुपये 39 पैसे और 332 रुपये 89 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 1 पैसा और 75 रुपये 14 पैसे। यूएई दिरहम 76 रुपये 63 पैसे 76 रुपये 77 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 91 पैसे और 1 रुपया 92 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,33,161 रुपये रही।
कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 90,743 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 32,436 मीट्रिक टन बरामदी और 58,307 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में मुमताज़ शायर और मुसव्विर राजा चंगेज़ सुल्तान के फन पारों की नुमाइश शुरू हो गई है। आर्टिस्ट के तख्लीकी काम में 100 से ज़ायद फन पारे नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ मनाजिर, अफसानों और इंसानी तस्वीर की अक्कासी की गई है। नुमाइश आइंदा माह की 1 तारीख तक जारी रहेगी। आर्ट्स काउंसिल कराची आइंदा माह आलमी सकाफती मेले की मेज़बानी करेगा। मेले में 102 मुल्कों से 800 से ज़ायद फनकार शिरकत करेंगे। और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। रावलपिंडी एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी एंड स्पेस साइंसेस ग्रुप ने आलमी हफ्ता खला के सिलसिले में तकरीबात के इनेकाद का ऐलान किया है। ये हफ्ता 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस साल हफ्ते का मौजू खला में रहना रखा गया है। मुंतज़मीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और खलाई तहकीकात के हवाले से मालूमात की फराहमी के लिए स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा को इन प्रोग्रामों में शिरकत की दावत दी है। इस सिलसिले में प्रोग्राम इदारे के मुख्तलिफ कैंपस में मुनक़िद होंगे। इन प्रोग्रामों में शिरकत से तलबा को कायनात के अजायबात को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। बरतानिया की रिसर्च और इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ताज़ा तरीन तहकीक में ये बात सामने आई है कि अज़ा के इर्द गिर्द लिपटी हुई चर्बी की ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार दिल की तेज़ी से बढ़ती उम्र का बायस है। और अब मौसम के हवाले से अलर्ट, एनडीएमए अलर्ट है। एनडीएमए ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिशों से खबरदार किया है। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के इंतबाह के मुताबिक एनडीएमए ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि वो मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की हिफाजती इंतजाम करें। और अब जानते हैं मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त बन्नू, लकी मरवत में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और मुल्क के बलाई हिस्से इस वक्त बादलों की लपेट में हैं, जबकि मुल्क के ज़ेरी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस दौरान चंद मकामात पर तेज बारिश और ज़ालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत सिबी में 41, नुकुंडी, बहावलपुर और दालबंदी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 34, मरी में 23, लाहौर में 37, कराची में 33, पेशावर में 30, कोयटा में 33, मुजफ्फराबाद में 28, गिलगित में 30, स्कर्दू में 28, श्रीनगर में 27, जम्मू में 34, लैब में 23, पुलवामा में 26, अनंतनाग में 27 और शोपियां में ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब में लाहौर, अपर माल में 30, जेल रोड पे 11, हेड ऑफ सवासा, ताजपुरा में 10, मुगलपुरा में 6, समनाबाद में 5, इसी तरह शाहपुर में 1, इस्लामाबाद में सैदपुर में 28, मरी में 9, गुजरांवाला में 5, चकवाल में 1, खैबर पख्तूनख्वा काकुल में 5, बालाकोट में 4, लोअरदीन में 3, दरोश में 2, पटन में 1, कश्मीर मुजफ्फराबाद सिटी में 5, मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट पे 4, रावलाकोट में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सऊदी वली अहद के साथ खुशगवार बातचीत के दौरान 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और इलाक़ाई मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। सियासी, समाजी और इक़्तिसादी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफा के तस्वीराती मुआहिदे को सराहा है। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने अहम मुआहिदों की मंजूरी दी है, जिससे रेकोडेक मंसूबे के आगाज की राह हमवार हो गई है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे शिराज उपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मतीउल्ला, मुदीर फॉरेन डेस्क वसीम अहमद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा,
पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।